Let us try to follow again the message teaching packed in holy signs and try to open it. In the beginning, introduction, you will find one important thing. It came from Samhita. There was a great Rishi Manu, a illumined sage of Satyuga. He has given some sutras. That sutras is packed in Manu Samhita. Manu Samhita is different, and what we think about some other text about Manu, Manu Smriti is different. Manu Samhita, Manu Smriti. I am talking about Manu Samhita, which is given by Swami Yukteswar, that our aim of life should be Kritam. We should always try to practice Kritam. What is the meaning of Kritam? I will explain. First, I am going to explain like this. In the Kri, they say Kritam. Kritam is consonant, you cannot pronounce it. This is the vowel. This vowel means pure. If you have to express about purity, you have to write Re. You pronounce like this. This key is associated with the action, all kind of activity. What is given here? All kind of activities when we perform, and what you feel, that is pure vibration. You cannot say it is comfort or discomfort, pain or pleasure. You cannot say. Repeatedly you have to say this is the pure vibration. As from electricity, light is coming. We say electrical light. What is the color? We can say white color, yellow color, whatever. In the same way, what various changes within we feel, that is called the pure vibration. Therefore, purity, element of pure consciousness, is present in this form. There is no impurity. This is the practice you have to do. Ta means try to remain stable in this consciousness. And above dot means all the time. Never keep yourself away from this concept. Head to toes, if I am walking or I am sitting, I am working, I am resting, in all dimension of activity, whatever I feel is purest of pure vibration. This is the important point. To practice this is very easy. If you do not practice, it means you are not working like scientist. You have to practice it to become like scientist and try to experience its effect. You will find all effects will give you more joy, more peace, more vitality, more immunity, lack of fear, lack of stress. If, let us have an example. If you are Mahatma Gandhi, when Paramahansa Yogananda visited Mahatma Gandhi, what he has written? 100-pound weight, body looking so slim, absence of wrinkles, beauty is infinite. His body was radiating physical
mental and spiritual vibration in huge quantity. Mahatma Gandhi never wanted to say, I want body weight like this kg or that kg. He was having only one idea, let me practice this Kritam Yugam. When you are sitting, standing, working, resting all the time, try to feel head to toe. Whatever experience, accept it, presence of purest of pure consciousness. अच्छी तरह समझिए कि होली साइंस के प्रारंभ में ही, इसके शुरू में ही खोलिए तो आपको भूमिका मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा। एक मनु ऋषि थे सतयुग के, सतयुग के मनु ऋषि ने कुछ लिखा, वो मनु संहिता में दिया गया है। एक है मनु स्मृति, एक है मनु संहिता। मनु संहिता अलग है, मनु स्मृति अलग है। स्वामी केशव गिरी मनु संहिता की बात कर रहे हैं। उस मनु संहिता में जो लिखा गया है उसको इन्होंने दिया हुआ इंट्रोडक्शन में, पेज नंबर 13 पर क्या कहा है? कृतम, इसमें देखिए लिखा हुआ है, चत्वार हायु सहस्राण वर्षाणांत कृतम युगम। कृतम युग को सतयुग कहा गया है। सतयुग में हम कैसे जाएंगे? जब हम कृतम का अभ्यास करेंगे। कृतम क्या है? जो का एक कॉन्सोनेंट है। का को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते जब तक उसको वावेल से न जोड़े। जो ऋषि में री है वो वावेल है। उस री का मतलब होता है प्योर, पवित्र। तो जितने हमारे कर्म हो रहे हैं, जैसे पैरों से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, सिर, चेहरा, गला, पीठ, सीना, पेट, इन सब में एकाग्रता बढ़ाइए। जो भी हम काम करते हैं सारे परिवर्तनों की अनुभूति करते हैं, वो पवित्र स्पंदन है, वो सुख दुख नहीं है। यही अभ्यास करिए। ता का मतलब उसमें स्थिर हो जाइए। इसके बारे में विस्तार से बहुत बार समझाए, ताकि बारे में कई दिनों तक समझाए, फिर उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ताक ऊपर बिंदी का मतलब ताक की निरंतरता। तो सिर से पैर की उंगली तक हम लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, काम करते हो, हर समय सारी अनुभूतियां ये पवित्र स्पंदन है। इसको सुख दुख न कहिए। माले का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 मिनट तो अभ्यास कर ही सकते हैं। आंख बंद करके या खोल करके, कान खोल करके या बंद करके, लेट करके या बैठ करके, खड़े होकर के या चलते हुए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए। जितनी अनुभूतियां हो रही है ये पवित्र स्पंदन है, स्वीकार करिए। 1 मिनट आपने स्वीकार किया, 1-1 मिनट दिन में कई बार करिए। आपने 1-1 मिनट 10 बार किया तो 10 मिनट हुआ। 1-1 मिनट बढ़ाते जाइए। आप बढ़ाने के प्रयत्न में रहेंगे, एक दिन आएगा आप आधे घंटे अभ्यास कर लेंगे। बढ़ाना रुकिए मत। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप 24 घंटा, आप चाहे लेटे हो या बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, सिर से पैर की उंगली तक समस्त अनुभूतियों को पवित्र तत्व की उपस्थिति अभ्यास कर लेंगे। जिस समय हम 24 घंटा अभ्यास कर लेंगे उसमें आपके सभी कष्ट गायब हो जाते हैं। कितना आसान है। और जब तक ऐसा ना हो हम अपनी तुलना करते हैं दूसरे का। तेलंगाना स्वामी 300 पाउंड के थे, 300 वर्ष के थे। पूरा उनका पेट और सीना सब लगता था जैसे कोई एक बहुत बड़ा बैरल हो। महात्मा गांधी 100 पाउंड के थे। महात्मा गांधी सेवा की, तेलंगाना स्वामी सेवा की। परमहंस योगानंद ने महात्मा गांधी को फॉलो करने के लिए कहा और किसी को नहीं। जब महात्मा गांधी से मिले परमहंस योगानंद तो क्या बढ़िया वर्णन लिखा है, इसमें आप पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 44 में है।
ये सब चीज को आपको पढ़ना चाहिए रोज। ऐसे पढ़िए जैसे कोई सदग्रंथ पढ़ा जाता है। महात्मा गांधी के साथ वर्धा में मात्र 100 पाउंड के इस क्षीणकाय संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की भूरी सी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी, विवेक का तेज था। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। अब देखिए इसमें आगे ये भी लिखा है कि उनके शरीर चाहे जितनी भी कमजोर, दुबली पतली क्यों न दिखती हो, एक भी झुर्री नहीं थी, थकावट का नामो निशान नहीं था, पूर्ण सक्रिय थे हर वक्त। एक तो वो शरीर है गांधी जी की, एक तेलंगा स्वामी की। आप किसकी तरह होना चाहते हैं? ना इसकी तरह होइए ना उसकी तरह, जो होली साइंस के अनुसार रहिए। सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये पवित्र स्पंदन की उपस्थिति, यही कहते रहिए। आज से, अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए।